हाथों को उठाएंगे, सब जन अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे। परमेश्वर हम तेरे नाम को महिमा देते हैं। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और बड़े नाम में। आमीन आमीन। तो आइए हम सब अपने स्थानों पे बैठ जाएं, अपने स्थानों पे बैठ जाए सभी जन। और अब हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखेंगे कि परमेश्वर ने जो लोगों की लाइफ में गवाहियों को खड़ा किया है, उन गवाहियों को हम देखेंगे। और हमारा बिलीव है उन गवाहियों को सुनने के बाद आप सेम वापस नहीं जाएंगे। तो आइए हम सब उन गवाहियों को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। हालेलुया। जैसा कि परमेश्वर के वचन निर्गमन 15 उसकी 26 आयत में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर ने इस वचन के दौरान इस फैमिली की जिंदगी में काम किया। जब बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज करने के बाद दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। फिर मेरी फैमिली मैनू गुरदासपुर हॉस्पिटल मैनू लेके गए। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਟੀਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਟੀਬੀ ਨਾਲ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਪ ਪੈਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਫਿਰ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज में इन्होंने लगातार आना शुरू किया, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में इनको चंगा किया और हर तरह की बीमारी से आजाद करके एक नया जीवन दिया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਤੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਾਰਚ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪਈ ਰਹਿਣਾ। ਕਦੀ 103 ਬੁਖਾਰ, 4 ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਕੁਛ ਪਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰਨਾ, ਫਿਰ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਖਾਣੀ, ਫਿਰ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਟੀਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਟੀਬੀ ਨਾਲ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਡੀਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਖਵਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਈਪ ਪੈਣੀ ਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਪ ਪੈਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਫਿਰ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ 3-4 ਹਸਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸੂਈਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 50 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਫਿਰ 20 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਟੋਟਲੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤੱਕ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 1000 ਕੋਈ 500 ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਛਡਾਉਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਣੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੌਣ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਲੱਗਣ ਹੀ ਡਿਆ, ਫਰਕ ਪੈ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਘਰ ਦੇ ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਘਰ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਘਰ। ਫਿਰ 10-20 ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਰੁਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਆਈ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸਾਮ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ 24 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ 4 ਜਣੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀਲਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। अब उस ऑयल को अपने सिरों पर, अपनी बॉडीज के ऊपर लगाएंगे और मैं आपको घोषणा कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम की कि आज आप जैसे आए हैं वैसे वापस नहीं जा रहे हैं। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀਲਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਲਗਾਇਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਲਪਟ ਤੇ गई हूं। और ये बहन जो है कहते हैं 4 महीने से पूरी तरह से बिस्तर पर थे और बेड पर लिटाकर इन्हें लेकर आए थे और आज कहते जैसे प्रार्थना हुई प्रभु ने छुआ, अपने पैरों के बल ये बहन खड़े हुए। जीसस तूफाना उत्ते मैनू भी सिखा दियो, कंबियों का बावाले यीशु मैनू ला दियो। उठना तूफाना उत्ते मैनू भी सिखा दियो, कंबियों का बावाले यीशु मैनू ला दियो। राज करनी उड़ान यीशु जी। ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਨ ਆਈ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ weight 20 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਪੂਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ
ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ। मैं अपनी इस चंगाई ਲਈ प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, प्रभु ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। आज बहुत सारा यूथ जो नशों के कारण अपने जीवन को खराब कर चुके हैं और उन चीजों से वो कभी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिसकी वजह से अपनी जिंदगी में हमेशा निराशा को, हमेशा उदासी को देखते थे। पर जब आप परमेश्वर की जीवित हजूरी में आते हैं तो परमेश्वर आपको नशों से, उन पाप से आजाद करता है जिनसे आप अपनी ताकत से नहीं निकल पाते। इसी तरह से इस बहन की इस मार्वलस टेस्टमनी को आप सुनेंगे कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में छुटकारा दिया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਨਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੋਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਣਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਟਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਬਸ ਮੈਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੇ 4 ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਚਿੜਚਿੜੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਾ ਰਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਸ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਰਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਸ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਕਰੂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਾਰਲਰ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਧੀਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਗਈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਰਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈ ਲਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਮੇਰੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਏਐਨਐਮ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ ਨਾਈਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਉਸ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਡਰ ਤੋਂ, ਭੈ ਤੋਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਰਲਰ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਾਪਸ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲਰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਫੇਰ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਧਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਦਾ ਵਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਘਰੇ ਜਾਈਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਈਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪ 'ਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਚੱਕੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। परमेश्वर ने आपने टेस्टिमनीज को सुना कि लोग अपनी गवाहियों को कैसे
बता रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत रीति के साथ कार्य किया। क्योंकि जब चर्च में हम टेस्टमनी सुनते हैं तो हम जस्ट कुछ ही सेकंड्स में हम सुन लेते हैं, कुछ ही मिनट्स में, लेकिन लोगों को बुलाया जाता है, फिर वो बैठ के प्रॉपर अपनी टेस्टमनी बताते हैं कि एक्चुअल में उनकी कंडीशन कैसी थी, परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन में कार्य किया। तो परमेश्वर का थैंक्स करो कि आप भी अपनी गवाही के साथ वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और जब आप अपनी गवाही देते हैं, आपकी टेस्टमनी को सुनने के दौरान लोग विश्वास करते हैं, मसीह में उनका विश्वास पक्का होता है, वो आगे बढ़ते हैं और आप भी अगली गवाहियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मेरा ये विश्वास है जो लोग आज प्रभु की हजूरी में आप बैठे हैं, आपकी टेस्टमनी श्योर है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आज आप अपनी गवाही को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम अगली गवाहियों को सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है, कहाँ के आप रहने वाले हैं, क्या आपकी टेस्टमनी है, उसके बारे में बताएं प्लीज। सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रियंका है, मैं जलंधर की हूँ और ये मेरी बेटी सोफिया की गवाही है। जो जेनेटिक कर्स था मेरी बच्ची की लाइफ में, परमेश्वर ने वो ब्रेक किया। जो मेरे फादर इन लॉ को ये प्रॉब्लम थी और मतलब जिसके दादाजी थे उनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। नोज का जुकाम, जैसे कहने को कहूँ, जुकाम नॉर्मल 7 ईयर की एज से इसको लगातार जुकाम रहता था। जुकाम मतलब आराम से लगातार जुकाम रहना रहता था। छींके 25-25, 30 छींके दिन में मारना, और हम नॉर्मल इस चीज़ को समझ रहे थे, पर वो लगातार कंटिन्यू बना रहा। हम डॉक्टर्स के पास गए, एक डॉक्टर, 2-3 डॉक्टर हम चेंज किए। उन्होंने बस एक ही प्रॉब्लम बोला कि आप इसको डस्ट एलर्जी हो सकता है, आप इसको मास्क पहनाया करिए, नॉर्मल जुकाम है, ठीक हो जाएगा। या आप इसके इम्यून सिस्टम पर थोड़ा ध्यान दें, इसकी खिलाई पिलाई पे ध्यान दें, ठंडे अवॉइड करें, ये सब चीज़ें उन्होंने बोली। और कोई मेडिसिन नहीं दी और हमें भेज दिया था। और तीनों डॉक्टर ने सेम चीज़ बताई। इसका नोज का एक्सरा भी उन्होंने करवाया था, पर उसमें वो कुछ भी नहीं निकला था, बिल्कुल ठीक था। और उन्होंने सिर्फ ये कहा नॉर्मल जुकाम है, ठीक हो जाएगा। और नॉर्मल जुकाम करते वो 1-2 साल ऐसे लगातार इसको बना रहा है। जैसे जैसे इसका एज बढ़ रहा था उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी। जैसे इसको नाक से सांस ना आना, नाक हमेशा बंद रहती थी, चेस्ट ब्लॉक रहना, रात को सोते समय इसको इसके आवाज़ आती थी और मुंह खोल के सोती थी रात में। हमको लगता था जैसे से बड़ी हो रही है, क्या ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हम इसको बोलते थे पर कहती थी मम्मा मैं जानबूझ के थोड़ी ना कर रही हूँ, मुझे सांस नहीं आता है, मुझे सांस फूलता है, खिंचता है, जिसकी वजह से मम्मा मैं रात को मुंह खोल के सोती थी। इसको स्मेल नहीं आता था, जैसे मैं कहती थी कभी स्मेल करो किसी चीज को, इसको कोई खुशबू नहीं, कोई स्मेल इसको फील नहीं होती थी। ओके, जब डॉक्टर के पास इनको दोबारा लेकर गए, दोबारा इनके चेकअप हुए सारे, तो डॉक्टर ने क्या बताया कि कौन सी बीमारी इनको हुई है? बीमारी का कुछ नहीं, बस एलर्जी, डस्ट एलर्जी, बस इस चीज को बोलते थे और कुछ भी ऐसा उन्होंने नहीं मेरे को बोला। एक्सरा उन्होंने एक बार करवाने की कोशिश की तो उन्होंने किया और उसमें भी ऐसा कुछ निकला नहीं, और बोला कि बस आप थोड़ा सा इसका खिलाई पिलाई का ध्यान दें। क्योंकि एक्चुअल में अगर मेडिकल टर्म में इसकी बात करें तो इस रोग को एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। मतलब कि इनके जो जहाँ से ये सांस लेती है वहां पर इनके बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो चुकी थी अंदर से, और इसकी वजह से सांस खुलकर नहीं आती थी। मेडिसिन खाई, इलाज करवाया, कितने डॉक्टर्स के पास गए? 2 या से 3 डॉक्टर हमने चेंज किए थे, पर दवाइयां खाने के बावजूद भी कुछ फर्क नहीं नजर आता। ओके, परमेश्वर ने कैसे हीलिंग दी, कैसे चंगाई प्राप्त की? हम 2022 से यहाँ पे आ रहे हैं लगातार, और लगातार जैसे जैसे पापा जी हर अनॉइंटिंग मीटिंग में ऑयल अप्लाई करने को कहते थे, हम इसके चेस्ट पे लगातार लगाते थे, प्रेयर माउंटेन में लगाते थे, पर कहते वो दिन परमेश्वर ने इसके लाइफ में ठहराया। 27 मई 2026 में नई शुरुआत की, नई बड़ी मीटिंग में, पर परमेश्वर पापा जी ने कहा कि आप जहाँ पे तकलीफ है वहाँ पे ऑयल अप्लाई करें। तो हमने इसकी चेस्ट पे ऑयल अप्लाई किया नॉर्मली जैसे हम हर बार करते थे, पर उस दिन इसको वॉमिटिंग हुआ और ये डिलीवर हुई, और हम नॉर्मल से कि प्रभु आज इसको एक डिलीवर दी है, पर हम एकदम उस चीज़ के श्योर नहीं थे। हम घर चले गए और 1-2 दिन हुआ, इसने स्मेल की कोई चीज़, कहती है मम्मा मुझे स्मेल आया, और ऐसे इसने देखा, हमने देखा कि हैंकी ले ली, क्योंकि ये दिन में 2 से 3 हैंकी पूरे फिल कर देती थी, फिर भी वो कम पड़ते थे। वो इतनी ज़्यादा इस चीज़ से परेशान थी और वो इसने हैंकी लेना छोड़ दिया। हैंकी नहीं ले रही, नहीं तो हर समय इसके हाथ में हैंकी रहते थे। लेकिन उस प्रेयर के बाद, अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करने के बाद अभी कितने महीने हो चुके ये बिल्कुल ठीक है? 3 मंथ से ये बिल्कुल हील है, इसने कोई हैंकी नहीं, मुंह बंद करके सो रही है, स्मेल आता है अच्छे से, इसको प्रॉपर
अच्छे से हर चीज को खा रही है, पी रही है। और कोई तकलीफ ऑपरेशन की जरूरत नहीं कोई पड़ी। चीज की ऑपरेशन की, किसी चीज की जरूरत नहीं। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज जो भी जन ऐसी बीमारियों के नीचे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स के नीचे हैं, आज जब आप प्रेयर को ग्रहण करोगे, उस प्रार्थना को ग्रहण करने के दौरान वो बीमारियां, वो रोग आपके शरीरों को छोड़ के जाएंगे और आप अपने जीवन की बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। तो प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें इन गवाहियों के लिए। सब उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ सब जन। इसी तरह से हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये सिरसा हरियाणा की गवाही है और इस ब्रदर का नाम अर्श है। इनकी गवाही है कि 15 साल की उम्र से ही ये भाई उन लोगों के साथ संगति करना शुरू कर दिया था इन्होंने जो बहुत ज्यादा नशों में थे, और उसके बाद से इनकी लाइफ में नशे एंटर किए और आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया। सभी बहन भाइयों को जेएमसी की। मेरा नाम हर्ष है, मैं सिरसा सिटी ब्रांच से हूँ और 2019 में मैंने नशे करने स्टार्ट कर दिए थे। दारू पीता था, गांजा पीता था, फीम खाता था, डोडे खाता था और मैं गलत संगति में पड़ गया था और सैलून का काम करता था। मैं सैलून की जितनी भी मेरी सैलरी होती थी मैं नशों में उड़ा देता था। उसके बाद चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ जाने के बाद मैं क्लब वगैरह जाने लग गया, क्लब में मतलब ड्रग्स लेने लग गया था मैं और गलत लोगों के साथ रहना सहना हो गया था। मैं लड़ाई झगड़े करता था, गैंगस्टर लोगों के साथ रहता था और उसके बाद मेरा शरीर बिल्कुल नशे की वजह से सूखने लग गया था। और उसके बाद मैं गोवा चला गया। गोवा जाने के बाद मैं कैसीनो में जाने लग गया, पैसा लगाने लग गया था। मतलब मेरा टोटली 12 लाख रुपए खर्चा हो गया था और मैं नशे करके गोवा के बीच पे पड़ा रहता था सारा रात। मैंने गोवा में नशा बेचना भी चालू कर दिया था और उसके बाद मैं डिप्रेशन में जाने लग गया था। डिप्रेशन की वजह से मुझे टेंशन होती थी मैं इस नशे से कैसे आजाद होऊंगा। उसके बाद मैं ओवरडोज नशा करने लग गया था और उसके बाद किसी पास्टर ने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया था। खामरा चर्च में मैं जाने लग गया था। जाने के बाद मैंने अप्रैल 2026 को प्रेयर को रिसीव किया। मेरे शरीर में से ठंडक को महसूस हुआ। उसी समय से मैं आजाद हूँ नशों से और मैं परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने बताया कि 26 अप्रैल 2026 को ये सिरसा ब्रांच में मौजूद थे और उस समय परमेश्वर के दास ने सामर्थी प्रार्थना को किया और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 3 महीने हो चुके हैं। ये उस नशे से, उन गलत संगति से, उस बीमारियों से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पे आजादी है। आज जितने भी लोग नशों में आए हैं यहाँ पे, या आप नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे है, आज परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे मौजूद है और डिलीवरेंस आपका हिस्सा यीशु मसीह के नाम में। तो जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे। आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम हरजिंदर सिंह है, पिंड फैजलाबाद, गुरदासपुर जिला। और मैं काम ते जा रहा हीगा। अच्छा। और उधर ਲੱਕੜ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀਗਾ। ਜੋ ਲੱਕੜ ਮਿਸਤਰੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੰਮੀ ਫੱਟੀ ਜੋ ਹੀ ਉਹ ਇਤਨੇ ਲੰਮੇ ਕਿੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। मैंने ध्यान नहीं किया ਉਹਦੇ ਵੱਲ। मैं जब जा रहा ही जैसे ऐसे पाँव तरह तो इतना किल जरा पाँव के ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ गया। मैं उसी थां पे बैठ के मेरे बहुत दर्द हुआ। मैं फिर उसको फट्टी को पीछे खींच के निकाल दिया। तो बाद में मैं काफ़ी 2-4 दिन ऐसे ही काम पे लगा रहा। और फिर मैं जब मेरे पैरों में दर्द होने लगा उसमें रेसा जरा ही पैना चालू हो गया ही। तो बाद में मैनू बहुत जानिया ने बोलिया तू ये उत्ते चार लाना हीगा, तेल तल के बनना ही।
ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਸਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿੱਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ। ਉਹਨੇ 5-6 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਝੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਰ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਮਾਸ ਸੌਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਰੇਸਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਰ ਚੋਂ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਚੀਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। 2-4 ਦਿਨ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਧੀਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਿਆ ਕਰਾਂ। 1-2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਜ਼ਖਮ ਸਹੀ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਰੇਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁੰਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਰੇਸਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੇਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਰੇਸਾ ਵਗਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ, ਚਲੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਫਿਰ YouTube ਤੇ ਬੰਦਗੀ कलानौर शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ देखी। कलानौर गुरदासपुर में जो क्रूसेड हुआ था, हाँ जी, हाँ वहाँ की बात। ओके। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ 7-8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਚੱਲ ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਉੱਥੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਖੀਆਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਾਉਂ ਤੇ ਰੇਸਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰੀ ਪਈ ਨਾਲ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ पापा जी बोलेंगे ना उन्हें रिसीव करना। मैं उसी थां ते बैठ के मैं पाँव ते हथ रख के मैं परमेश्वर जो पापा बोलेंगे भी मैं ठीक हो जाऊँ। तो जब मैं बरसब चालू हो गई उस थां ते मेरी काफ़ी लत्त जी भारी हो गई, घट सो घट 30-40 किलो वजन हो गया लत्त का। तो मेरे को चुकना बहुत मुश्किल हो गई। तो मैं फिर भी खुदा दा, मैं जदों ना वर्शिप शुरू की मैं वर्शिप करता रहा, मैं चुक के पैर मारता रहा तो रेसा जिहड़ा ही आपे वगना चालू हो गया। बिल्कुल रेसा जिहड़ा ही खाली हो गया पैर दे विचों। सोच भी जिहड़ी ही उसी टाइम ते लथ गई सारी पैर दे विचों। ते जद मैं घर जाके पट्टी खोली तो थल्लियों जख्म जिहड़ा ही बिल्कुल बंद हो गया ही। हालेलुया, तारीफ करें जोर से, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें।
और उसके बाद आज 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका, बिल्कुल ठीक है, हाँ, कोई बिल्कुल ठीक। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं कोई तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सब जन। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। इसी तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी यमुना नगर चर्च ब्रांच से सिस्टर रानी की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत टेस्टमनी है। इनकी टेस्टमनी की 2015 में इस बहन की मैरिज हुई और इनके जो हस्बैंड थे वो तांत्रिक थे और उनके साथ मिलकर इस बहन ने भी तांत्रिक का काम करना शुरू कर दिया था। ये लोगों का उपाय करते थे और उनका उल्ट असर इन दोनों के ऊपर होने लगा। इस बहन के ऊपर ज्यादा हो गया, उसके कारण ये बहन डिप्रेशन में जा चुके थे, पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे। उसके साथ साथ बीमारियां एंटर हुई। ये रात को उठकर शमशान घाट में चले जाते थे, कोई भी इन्हें सुध बुध नहीं रहती थी। और आज ये यमुना नगर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। को जय मसीह की। मेरा नाम रानी है। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 11 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरे हस्बैंड तांत्रिक का काम करते थे और मैं भी करने लगी। फिर मेरे को सपने में मुर्दा लोग, जानवर, काला साया और काले कुत्ते दिखने लगे। रात को मैं शमशान घाट में भी जाती थी। फिर सुबह उठ के देखती थी मेरी बॉडी पर नीले निशान पड़ गए। हमारे घर में मांस और खून के छिंटे भी गिरते थे। फिर उसके बाद मेरे को 1 घंटा खेल आने लगी। खेल आने के बाद मैं अपने सर को नोचती थी और पागल सर पटक्का मारती थी दीवार में। फिर मेरे को लोग पागल बोलने लगे। 2 से 4 डॉक्टरों पर दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ा है। मेरे को फिर मरने का बेटा है, कभी जलकर मर जाऊं या लाइन पर कट कर मर जाऊं, मिट्टी तेल छिड़क कर मर जाऊं। हमारी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। हमारे में लड़ाई झगड़ा रहने लगा। मैं इसे तलाक देना चाहता था। मैं अन्य जगहों पे से लेके गया, कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने 8 से 10 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च किए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमको एक सिस्टर ने शुभ समाचार दिया। हम खामरा गए, परमेश्वर के दास ने हम प्रार्थना करी, हमने उसको रिसीव किया। उस दिन से हम आजाद हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह के। परमेश्वर के दास और दासी को धन्यवाद करते हैं। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। 9 फरवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने उस सामर्थी प्रार्थना को ग्रहण किया और उसी समय इनको ऐसे लगा कि इनको कोई छोड़ के गया है। और उस दिन के बाद वो अटैक जो सालों से इनके ऊपर होते आ रहे थे, वो अटैक इनकी जिंदगी से खत्म हुए। जब टेस्ट करवाया तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, डिप्रेशन इनको छोड़ के गया। और आज ये बहन पूरी तरह से ये उन दुष्ट आत्माओं से, उस जादू टोने से, उस डिप्रेशन से, उस बीमारियों से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि हे बोझ हेठ दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और उसी परमेश्वर ने इस बहन के हर एक बोझ को खत्म किया, जो बोझ बीमारी का था, जो डिप्रेशन का था, जो गरीबी का, जो जादू टोने का था। परमेश्वर ने उस बोझ से इनको आजाद किया और उसके साथ ही इन्हें ब्लेस किया एक बड़ी गवाही के साथ। और हमारा विश्वास है कि आज आप जो बोझ लेकर आए हैं अपनी बीमारियों का, अपनी परेशानियों का, आज के बाद ये बोझ आपका हिस्सा ना होगा, कोई बीमारी आपका हिस्सा ना होगा। आज आप आजाद होके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करते जाएं जोर से, जितनी ताकत आपके हाथों में है। इन बड़ी गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। और ये सभी टेस्टमनीज जो आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत रीति के साथ कार्य किया। परमेश्वर ने फाइनेंशियल वेज ओपन किए, क्योंकि जब आप लगातार बोते हैं खुदावंद के कामों के लिए, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े रहते हैं, तो परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ता है और खुदावंद रास्तों को ओपन करता है। ये गवाहियां फर्स्ट टेस्टमनी ब्रदर आशीष कुमार की है और ये जम्मू के रहने वाले हैं। 4 साल से ये गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे,
लेकिन कभी मेडिकल में, कभी फाइनल में कोई ना कोई रुकावट आने के कारण इनका जो काम बन नहीं पा रहा था। लेकिन जब चर्च में लगातार जुड़े रहे, बीज बोने की महत्वता को समझा, बीज बोने में लगातार जुटे रहे, प्रार्थनाओं को रिसीव करते गए, परमेश्वर ने अपना फेवर दिया और इनको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। खुदावन ने रास्ते ओपन किए, परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तो प्रभु की तारीफ करें इस आशीष के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर काजल ये जलंधर के रहने वाले हैं। ये टेस्टमनी है इनकी कि 8 साल से ये बहन फॉरेन जाना चाहते थे, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब लगातार परमेश्वर के घर के साथ जुड़े रहे तो परमेश्वर ने फॉरेन के 2 साल के वर्क परमिट वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, रास्तों को खुदावन ने ओपन किया है। एक बात को हमेशा ध्यान में रखें कि जब आप बोना शुरू करते हैं, परमेश्वर डिवाइन रीति के साथ, हो सकता है आपको लगता है कि शायद मुझे इस काम में जाना चाहिए, इसमें ज्यादा पैसा है, इस काम में जाना चाहिए, इसमें ज्यादा मुनाफा है, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और होती है। वो तब योजना पूरी होती है, वो तब रास्ते ओपन होते हैं जब आप एक मन और सच्चे मन के साथ खुदावंद के साथ जुड़ते हैं और अपने बीजों को बोते हैं। तब परमेश्वर वो मर्जी जो परमेश्वर की है वो आपके जीवन के ऊपर जाहिर करता है। तो प्रभु की तारीफ करें इन गवाहियों के लिए। सिस्टर कमला देवी, इनकी टेस्टमनी है कि पिछले 5 साल से इनके बेटे की टेस्टमनी के 5 साल से इनका बेटा फॉरेन जाना चाहता था और वीज़ा अप्लाई कई बार किया, लेकिन किसी न किसी इशू के कारण रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। और जब से ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, प्रार्थनाओं के साथ वफादार हैं, अपनी ऑफरिंग, अपने बोने के साथ वफादार हैं, इनके बेटे को परमेश्वर ने फॉरेन के 2 साल के वर्क परमिट वीज़ा के साथ खुदावन ने ब्लेस किया। तो प्रभु की तारीफ करें इस आशीष के लिए। सिस्टर शिवानी कपूर बटाला के ये रहने वाले हैं। ये गवाही कि इनकी 2-3 साल से ये बड़ी ज़मीन लेना चाहते थे, लेकिन इनके पास पहले से ही ज़मीन जो थी वो पार्टनरशिप में थी और ये अपना खुद का परचेज करना चाहते थे, नया लैंड, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी थे, लेकिन अपना विश्वास, अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। और 1 महीने के जब इन्होंने बीज को बोया तो 1 महीने के अंदर अंदर परमेश्वर ने इनको अपनी लैंड के साथ, अपनी प्रॉपर्टी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। प्रभु की तारीफ करें इस आशीष के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर जसविंदर कौर, ये कपूरथला के रहने वाले हैं। 3 सालों से ये अशुद्ध चीज़ें खाते थे, जिसकी वजह से हमेशा मिट्टी, ऐसी चीज़ें जो थी हमेशा ये इनको मुंह में रखते थे और बहुत ज़्यादा ये परेशान रहते थे, जिसकी वजह से इनका ब्लड भी 5 ग्राम रह गया था और वो एक आदत जो थी वो धीरे धीरे करके एक बीमारी में बदल गई। दवाइयाँ खाई, 2 साल लगातार, अपनी गर्दन को मूव तक नहीं कर पाते थे, डॉक्टर चेंज किए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब परमेश्वर की दासी ने हाथ रखा, प्रार्थना हुई, प्रभु की सामत ने छुआ, उसके बाद आज 1.5 महीने के लगभग हो चुके हैं। ये बहन पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं। तो परमेश्वर की तारीफ करें इन गवाहियों के लिए और इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए जो खुदावन इनके जीवन में की। एक बार जोर से तालियों के साथ प्रभु का थैंक्स करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। खुदावन ने रास्तों को ओपन किया, परमेश्वर ने ब्लेस किया। एक और हरियाणा सिरसा ब्रांच से हमारे साथ गवाही मौजूद है। इस सिस्टर का नाम सीमा है। इनकी गवाही है कि 2016 में इस बहन को ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, जिसकी वजह से इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और ये कुछ भी नहीं कर पाते थे। और आज ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी हीलिंग की गवाही को सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सीमा है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम काजल है। हम हरियाणा सिरसा से अपने मदर की, जिनकी बहुत बड़ी गवाही देने जा रही। 2016 में इनका बीपी हाई रहने लग गया। उसकी वजह से मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था और मैं सिर को पूरी तरह चुन्नी से बांध के रखती थी। और फिर मैंने किसी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मेरे को दवाई दी और मैं दवाई खा रही थी, बट मुझे कोई आराम नहीं आ रहा था। फिर हमने किसी स्पेशलिस्ट न्यूरोसर्जन को दिखाया, जो इनके उन्होंने रिपोर्ट की तो रिपोर्ट में आया कि इनके जो ब्रेन में है स्ट्रोक बताया है, सिर की नसें वो ब्लॉक हो चुके हैं। फिर ऑप्टिक एस्ट्रोफी इनको हो चुका था, ये बिल्कुल इनको दिखना बंद हो गया था। 20 दिन तक हमने इनको एडमिट रखा, 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा लगा दिया था। मेरे को चीजें भूलने लग गई थी और मैं रोती रहती थी, मेरे को कुछ याद नहीं रहता था। रात को मेरे को नींद नहीं आती थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। फिर हमें किसी सिस्टर ने खामरा चर्च के बारे में बताया। फिर 4 अगस्त 2024 को परमेश्वर की दासी के द्वारा इनका ले हैंड होगा। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा ठंडक महसूस हुआ, हल्कापन हुआ और मैं बिल्कुल अब साफ देख पा रही हूँ। मुझे कोई मेरे को परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल सही देख पा रही हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ
और खुदा के दास दासी का मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि 4 अगस्त 2024 को जैसे ही परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ इनके सिर के ऊपर आया, इन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा ठंडक महसूस हुई और आज 2 साल 1 महीने हो चुके हैं। ये उस ब्रेन के रोग से, आंखों के रोग से, नर्व्स के रोग से टोटली आजाद हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। इस बड़ी हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की, तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और आप जानते हैं कि निर्गमन 15 उसकी 26 में लिखा है, क्योंकि मैं ही वह प्रभु हूं जो तुम्हें चंगा कर सकता हूं, और सचमुच जीसस के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है जो आपको हील कर सकता है, आपको डिलीवर कर सकता है। केवल वो ही इकलौता परमेश्वर है जो आपकी बॉडी को हील कर सकता है, आपको दुष्ट आत्माओं से डिलीवर कर सकता है। तो इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की, तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर की। हालेलुया। एक प्रेयर को हम देखेंगे 19 जुलाई 2026 को, जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी थी। उसमें परमेश्वर की दासी ने भी उन बहनों के लिए आगे बुला के प्रेयर हुई थी जो डिप्रेशन के नीचे, मेंटली डिस्टर्बेंस के नीचे थे। तो मैं चाहता हूं कि बहुत टेस्टमनीज हमारे पास हैं, उन टेस्टमनीज को, उन गवाहियों को सुनने से पहले आपको उस क्लिप को देखना है कि परमेश्वर ने कैसे और किस रीति के साथ उन लोगों के जीवन में कार्य किया है। और आप जानते हैं कि जब भी पुलपिट से कुछ भी अनाउंस किया जाता है, कुछ भी बोला जाता है, तो वो हमेशा पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोला जाता है। जब भी परमेश्वर के दास लोगों को कमांड करते हैं, कॉल करते हैं, आगे बुलाते हैं, वो चाहे इविल स्पिरिट्स वाले लोग हों, वो चाहे डॉक्यूमेंटेड जो फाइल्स लेके आते हैं, बीमारियों के साथ है, वो लोग आगे आते हैं। तो कुछ भी जो होता है वो परमेश्वर की मर्जी से ही होता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही होता है। तो परमेश्वर ने उस प्रेयर के दौरान बहुत सारे लोगों के जीवन में कार्य किया, परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। और ये सभी टेस्टमनीज जो आपके सामने खड़ी हैं, जो चर्च में यहाँ पे मौजूद हैं, कि परमेश्वर ने रास्तों को ओपन किया, परमेश्वर ने इनकी लाइफ को परमेश्वर ने सेटिस्फाइड किया, और हर तरह की बीमारी से, मेंटली डिस्टर्बेंस से परमेश्वर ने आज़ाद किया, डिप्रेशन से, बीमारियों से, और खुदावन ने एक नया जीवन दिया। और ये जो फर्स्ट टेस्टमनी सिस्टर कुलविंदर कौर इनका नाम है, और अगस्त 2025 में इनको ब्रेन अटैक आने के कारण इनके परिवार में, जबकि इनके खास व्यक्ति की मौत होगी, उसके बाद से ये इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थे और बहुत ज़्यादा ये परेशान रहते थे, हमेशा गुमसुम रहते थे, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस होने लगी थी और चीज़ों को भूलने लगे थे। एक ही काम को ये बार बार करते रहते थे, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये डिस्टर्ब हो चुके थे। तो सिस्टर थोड़ा सा आप प्लीज़ बताएं कि आपकी कंडीशन कैसी थी उस वक्त, कैसी हालत थी आपकी? ब्रदर जी बहुत माड़ी हालत थी। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मेरे 20 दिनों की मेरी बेटी, 2 बेटियां मेरिया वड्डियां, ऑपरेट दे नाल मेरी डिलीवरी हुई। 20 दिन दी मेरी बेटी, जिधर मेरे हस्बैंड की अटैक होने नाल डेथ हो गई। मैनू प्रॉब्लम होने लगी। मैं सुसाइड करने की भी कोशिश की कि मैं चीज़ों तो जल्द निकल जा, बच जावा। पर मेरे पेट जो मैं बाहर चली, मेरा ऑपरेट होया ही, मैं रात हौली हौली बाहर चली, मेरी छोटी बेटी रोन लग गई, मैं फिर वापस आ गई। उस तो बाद मेरे पिंड वाले ने मेरा बहुत विरोध किया, कहते कि ना सानू पिंड दे विच दरी, ना कोई भांडा, कोई साडे घर नहीं आया, क्योंकि असीं खुदा दे विच सी। और उस समय जो डिप्रेशन का लेवल था बहुत बढ़ चुका था। हाँ जी ब्रदर जी। आपको क्या लगता था कि मतलब आपके साथ क्या हो जाएगा, मन में क्या चीजें घूमती थी? ब्रदर जी मैंने लगता है कि मेरी भी डेथ हो जानी है, मेरिया बच्चियां रोल जानियां, मेरी बहुत माड़ी हालात हो गई। पिंड वाले ने भी साडे ने, कोई मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, कोई साडे घर नहीं आया। ओके, उस दिन जब 19 जुलाई 2026 को परमेश्वर के दास ने उन बहनों को, उन लोगों को आगे बुलाया था जो डिप्रेशन के रोगी हैं या ऐसी कंडीशन के नीचे हैं, उस दिन का एक्सपीरियंस बताएं, क्या हुआ था आपके साथ?
ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ रहती, पर उਦੋਂ तो मैं ब्लेस हूं। ओके, उस प्रेयर के क्लिप को एक बार हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। परमेश्वर ने ये मुझसे कहा है कि मेरी वाइफ उनके लिए प्रार्थना करेगी, खासकर सिस्टर्स को। आपके जीवन में एक अजीब सा बोझ है शैतानी, एक अजीब सा डिप्रेशन है जो आपको रेगुलर लाइफ जीने नहीं दे रहा। आपको आगे आना है अभी, और आप मेडिसिन खाती हैं इसके लिए, दिमाग के डॉक्टर की, किसी की भी, वो सब लोग। अगर आपके पास रिपोर्ट्स हैं, मेडिसिन है, तो उसे साथ लेके आओ। और ये डिप्रेशन है अजीब रीति का, आपको आगे आना है। आज परमेश्वर की आत्मा को आपको छूते और आपको आजाद करते हुए आपने 3 रोजे रखने हैं और खुदा का थैंक्स करना है और बाइबल पढ़नी है। थर्सडे आप मुझे गवाही देगी फोन के ऊपर। वो डिप्रेशन की आत्मा इन बहनों को छोड़ के जाती रहे होली गोस्ट फायर के साथ। इनकी सोचों से, इनके ख्यालों से, इनके जहन से, इनके दिमाग से, इनके विचारों से, इनके इमोशनली मानसिक रीति से, इनकी बॉडी से वो डिप्रेशन जाता रहे। वो परी की आत्मा आउट, वो टूटा हृदय, वो टूटा मन, वो हार्ट ब्रेक, वो सारे रोग, वो सारे बोझ, वो मेरे जहन पे बोझ कहीं यीशु के नाम में आउट हो जाए। ओके, उस प्रेयर के बाद जैसा परमेश्वर के दास ने बोला था कि 3 दिन के रोजे रखने, फास्टिंग में जाना है, तो आपने उसको इंस्ट्रक्शन को पूरा किया। हाँ जी ब्रदर, फास्टिंग रखे। हाँ जी ब्रदर। ओके, उसके बाद का अभी तक का जीवन कैसा जा रहा है आपका? बहुत ब्लेस है ब्रदर जी। जो मेरे बेटियां दी टेंशन रहती ही हुण असीं बहुत ब्लेस है, हुण मेरे कोई बोझ नहीं है और पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। हाँ जी ब्रदर जी। तारीफ करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। और आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? शरणजीत। कहाँ के रहने वाले आप? मोगा। पिछले कई महीनों से आपके ऊपर भी डिप्रेशन के अटैक थे हो रहे, और जिसकी वजह से मन के ऊपर गहरा असर पड़ा था। हाँ जी ब्रदर। ओके, कैसी हालत थी आपकी? थोड़ा सा जस्ट बताएं 1 मिनट में। ब्रदर मेरा प्रार्थना करन नूं मन नहीं सी करदा, घरे कुछ भी करदी सी मैनूं भुल जांदा सी। ब्रदर एक अजीब से बोझ सी, मेरा दिल करता सी कि मैं इस घर विच ना रवां, या मर जावां या किते चली जावां। क्योंकि ये जस्ट एक नॉर्मल डिप्रेशन नहीं था जो कई बार लोगों को हो जाता है। परमेश्वर के दास ने स्पेशल उस दिन बोला कि ये अजीब सी चीज़ है, अजीब सा डिप्रेशन है, अजीब सी बेचैनी है, अजीब से ये मेंटली अपसेट है, जिसकी वजह से आप मतलब पूरी तरह से उसमें अनकॉन्शियस व्यक्ति हो जाता है। तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही थी, लेकिन उस प्रेयर के बाद क्या हुआ फिर? उस जदों पापा जी बोले कि ओ भैणा अगे आउण, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆ, मैं फ्री हाँ। यीशु दे नाम दे विच मैं 3 रोजे रखे, प्रभु दा धन्नवाद कीता कि परमेश्वर तू ही है जिसने मैनू बचाया, कोई मैनू बचा नहीं सकता सी, किसी ने मेरा साथ नहीं दिता, सारे साथ छड्ड के। प्रभु की तारीफ करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, बड़ी गवाही के लिए। आप बताएं आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले आप? ब्रदर मेरा नाम ममता है। मेरी बेटी ਨੂੰ ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੌਗ ਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ
ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੀ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਣਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿਖਾਈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਏ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਬਸ ਇਹ ਥੋਟਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੋਝ, ਇੱਕ ਪਹਾੜ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਹਾੜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਸਮਾਈਲ ही किसी ने छीन ली आ, इतना दा सीगा। ओके, उस दिन फिर जब आगे आए थे क्या हुआ फिर उसके बाद? ब्रदर मैं गुरदासपुर ब्रांच ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਡਨਲੀ ਜਕਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਛੂਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਭਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਠੰਡਕ ਫੀਲ ਹੋਈ, ਏਦਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਨੇ ਉਖਾੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟੀ ਹੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਬਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਡੇ ਵੀ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਨਰਸਰੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ कैंसिल नहीं करनी, बेटी स्कूल जाएगी, बेटी पूरी तरह हेल्दी स्कूल जाएगी। तो बाय गॉड ग्रेस जो पिछले मंथ तो स्कूल नहीं जान दी, पूरा वीक लास्ट पूरा वीक बेटी स्कूल गई, पूरी हेल्दी रही, पूरी हैप्पी, खेडदी खादी पीती सब कुछ उन्हें किया। इत्थों तक कि टीचर्स ओदी प्रेज करन उन रोज गुड दे के भेजदे स्कूल। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, क्योंकि उस प्रेयर को अगर आपने ध्यान से सुना तो प्रभु के दास ने बोला कि वो एक अजीब सा बोझ, अजीब सा जो डिप्रेशन है जो आपको रेगुलर लाइफ जीने नहीं देता और आपकी रेगुलर लाइफ डिस्टर्ब हुई पड़ी थी पूरी। ब्रदर मैं जो रोटी बनाती या मैं कोई काम करती मेरे अंदर बस यही मैं अंदरों अंदर रोई जाती, मैं किसी शेयर नहीं कर पाती कि मैं तू मैनू की होण दिया। मेरे अंदर इतना कि जिदा किसी दुख का पहाड़ मेरे अंदर रखे है, मेरा आनंद खो लिया। लेकिन उस दिन के बाद जब 3 रोजे आपने रखे, फास्टिंग ब्रदर रखी, मैं रोजे रखे, मैनू परमेश्वर दी आत्मा ने उदन ही छू के उदन ही हील कर दिता सीगा। थैंक्स करें परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। ओके, इससे से आप बताएं आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पूनम, पिंड सलाला। ओके, पिछले 3 साल से सेम पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, एंजाइटी के अटैक आपके ऊपर भी होते थे। हाँ जी। आपको क्या लगता था मन में, क्या चीजें चलती थी? जस्ट मन में जिदा शैतान गलत रिलेशन बनाता सी उदे दिन विच मतलब ड्रीम होने, लाइफ निराश रहन लग गई सी। ओके, उस दिन जब पुलपिट के ऊपर आए, प्रेयर को रिसीव किया, हाँ जी, 3 दिन की फास्टिंग में गए, हाँ उसके बाद जी, आप फ्री है उससे? हाँ जी। कोई अटैक नहीं हुआ उसके बाद? नो। कोई डिप्रेशन, कोई पैनिक अटैक? नो। कोई मेंटली डिस्टर्बेंस? नथिंग, सब ठीक हो चुका भी। तारीफ करें परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम सोमलता है और ये फगवाड़ा के रहने वाले हैं। 23 साल से 23 ईयर्स से आपके ऊपर डिप्रेशन के अटैक होते थे। यस ब्रदर जी। क्या मन में आता था, कैसी कंडीशन थी आपकी उस वक्त? ब्रदर मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई सी तो मैं चाहती थी भी मैं लाइन ते कट के मर जावा, तो 2 बार मैं लाइन ते कट के मरने की कोशिश की थी और मैं करंट लगा के भी मरने की कोशिश की थी, क्योंकि आपके अंदर निराशा थी, डिप्रेशन, अजीब सा बोझ रहता था। हाँ जी। ओके, उस दिन जब 19 जुलाई को आप आगे आए, प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद अभी तक का जीवन कैसा है? बिल्कुल ब्लेस है, कोई अटैक नहीं है? नहीं, बिल्कुल फ्री है। हाँ जी। आनंद 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 मिला है प्रभु के घर से। हाँ जी। ओ तारीफ करे खुदावंद के नाम को महिमा दे। आप बताएं बहन, आपका नाम और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम चरणप्रीत है और मैं जलंधर की रहने वाली हूँ और पिछले 3 साल से आप कह लीजिए मुझे डिप्रेशन धीरे धीरे, मतलब अचानक से नहीं, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। मेरी प्रेयर लाइफ सब चीज़ें ऐसे ख़त्म होनी शुरू होगी और मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, खुद को मारने की, गला दबा के मैं फ़ोन पे मेंटल हॉस्पिटल चेक करती थी, मेरे कानों में आवाज़ पड़ती थी तूने पागल हो जाना है, तूने पागल हो जाना है, लेकिन मैं मुंह से नहीं निकालती थी।
और पापा बोलते हैं ना मुंह से नहीं निकालना, तो फिर उसने मुझे ऐसा कहते हैं खुद को मारने की अलग अलग तरह से। स्कूटरी चलाते टाइम मैंने आंखें बंद कर लेनी और मैंने रोना अपनी फैमिली से छुप के, मैंने अकेले रूम में जाना और ऐसे रोना, अपने बाल पकड़ के मैंने खुद को, वो कहते हैं मारना पीटना, नेगेटिव एंटायरली मुझे लगता था कि अब खत्म है, सब फिनिश है। और पीक आया मार्च 2026, मार्च अप्रैल मई जून, पहली बार मुझे पता चला पैनिक अटैक क्या होते हैं। मेरी बॉडी शिवर करनी और मैंने इतना मतलब खुद में टूट जाना, पर मुझे समझ नहीं आ रही थी हो क्यों रहा है। कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड डिसअपॉइंटेड। ओके, 19 जुलाई वाली प्रेयर को जब आपने रिसीव किया, उसके बाद अब तक का जीवन कैसा है, कैसी लाइफ जा रही है? जैसे मम्मा ने प्रेयर की, मेरी आंखों से ऐसे आंसू बह निकले जैसे सारी, वो कहते हैं ना, सारी चिंता उन आंसुओं में बह गई और मेरे मन में अजीब डिवाइन पीस रिस्टोर होगी। उसके बाद उन 3 फास्टिंग्स के बाद आई एम कंप्लीटली इन पीस में, शांति में हूँ। आओ तारीफ करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम को। देखो ये सुनाम दी हर कोई आज गवाही देता है। जिस तरह परमेश्वर ने इन लोगों को आजाद किया, ऐसी हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमनीज हमारे पास आई कि जिनको परमेश्वर ने उन डिप्रेशन से, मेंटली अपसेट से, उन पागलपन से और वो चीजें जो अजीब सा बोझ लोगों के मन के ऊपर रहता था, जो रेगुलर लाइफ उन्हें जीने नहीं देता था, ऐसी चीजें, ये जस्ट एक नॉर्मल डिप्रेशन नहीं है कि जस्ट किसी चीज को सोच सोच के बंदा डिप्रेस्ड हो गया जी, इनको थोड़ा सा इनकी सोचें बदल गई, ऐसी चीज़ें। नो, ऐसी नहीं, ये हाई लेवल की चीज़ें थी और डिफरेंट चीज़ें थी जिनसे परमेश्वर ने आज़ाद किया। और भी टेस्टमनी हमारे पास है, छत्तीसगढ़ से सिस्टर रानी है, इनकी भी सेम टेस्टमनी के 2023 से इनको डिप्रेशन के अटैक होते थे, हर समय निराश, बेचैन, सुसाइडल थॉट्स, 10 बार कम से कम अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की, मेंटली डिस्टर्ब थे, होप नहीं थी, उम्मीद आस खत्म हो चुकी थी। लेकिन 19 जुलाई वाली प्रेयर को रिसीव किया, 3 दिन की फास्टिंग रखी, उसके बाद टोटली डिलीवर्ड हैं, टोटली आज़ाद हैं, परमेश्वर ने फ्री किया। सिस्टर पूजा, ये गुजरात से इन्होंने अपनी गवाही को भेजा कि 13 साल से लगातार डिप्रेशन के और दिमाग के ऊपर एक भारी बोझ रहता था, माइंड हमेशा इनके कंट्रोल में नहीं था, डेविलिश आवाज़ें आती थी कि मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा, जिसकी वजह से इनका माइंड की जो नसें थी वो ब्लॉक होना शुरू हो चुकी थी और अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोचते थे। इन्होंने गुजरात में वडोदरा में जो ब्रांच है वहाँ में जाना शुरू किया और 19 जुलाई 2026 को जिस तरह यहाँ पर लोग आगे आए थे, वहाँ पर ये आगे गए और एक असीम सी शांति इनको महसूस हुई। उसके बाद ये टोटली फ्री हैं, कोई डिप्रेशन, कोई एंग्जाइटी, कोई अटैक नहीं है, परमेश्वर ने डिलीवर किया। सिस्टर अनीता, ये दिल्ली के रहने वाले हैं, 2018 से ये डिप्रेशन के अटैक के नीचे थे, अकेले ही बोलते रहते थे, नींद नहीं आती थी, सिर में हमेशा बोझ रहता था, बिहेवियर रूड हो चुका था, हर टाइम फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, गुस्से में रहते थे, किसी से बात करना पसंद नहीं था, मन में हमेशा अशांति इनको महसूस होती थी। लेकिन उस दिन के बाद से ये भी पूरी रीति के साथ फ्री हैं, पूरी रीति के साथ आज़ाद हो चुके हैं। एक और टेस्टमनी सिस्टर शेरिन, ये गुजरात के रहने वाले हैं, पिछले कई महीनों से सेम अटैक, फियर स्पिरिट के अटैक इनके ऊपर होते थे और डिप्रेशन था, मन में बेचैनी और फालतू चीजें सोच सोचकर ओवर स्ट्रेस्ड हो चुके थे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन प्रोफेटिक उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद ये बहन टोटली फ्री हो चुके हैं। ये सभी गवाहियां जो आपके सामने खड़ी हैं, ये जो आपको ऑनलाइन दिखाई गई है, और भी बहुत सारी सैकड़ों टेस्टमनी जो कॉल सेंटर में आई हैं, परमेश्वर ने डिलीवर किया, आजाद किया। तो खुदाबंद की तारीफ करें, ऊंची आवाज आप भी अलग, ओदे कम भी अलग, सजदे च दूध दे खड़े रहंदे ने। मैं की दसा खूबियां जो मेरे यसू विच ने, कम जिदे सामने सकदे ना टिकने। मैं की दसा खूबियां जो मेरे यसू विच ने, कम जिदे सामने सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के? सबको जय मसीह की। मैं यूपी बरेली से हूँ, मेरा नाम बीनम भारती है और मेरी शादी 2016 में 4 दिसंबर को हुई थी और उसके 2-3 महीने के बाद मेरी फैमिली में मतलब लड़ाई झगड़े होने लगे। ये मैं नहीं जानती थी कि ऐसे होते थे। जब भी मेरे हस्बैंड कमरे में आते थे तुरंत ही मारना और पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच मैं प्रेग्नेंट भी हो गई और मेरे ससुराल पक्ष मेरे
घर वालों मतलब मुझसे कहते थे कि मैं अब तुझे छोड़ दूंगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे तेरी माँ की कोख से सृजा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने मुझे उसी समय चुना। और जब मेरे ससुराल पक्ष ने 2020 में मुझे निकाल दिया था, तो उसके बाद में मैं जब निकल आई थी और वहां से मुझे निकाल दिया, मैं अपने मायके आ गई। ये कब की बात है? 2020 में 20 अगस्त ब्रदर। ओके, आपको और आपका एक छोटा बेबी था, जी, दोनों जी। को घर से निकाल दिया जी, और जी। डाइवोर्स केस लगा दिया जी था। जी जी, मैं वहां रहती भी रही और मेरे ऊपर केस कर दिया गया था और मतलब मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करा गया। उसके बाद में जब मैं आ गई, उसके बाद में मेरी मदर भी एक्सपायर हो गई और उसके बाद में 2-3 महीने बाद मैं अपने मायके को भी छोड़ दिया मैंने। लेकिन इस बीच में मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट करा और उन्होंने मेरा पूरा मेरे बच्चे का खर्चा उठाया। और इसी बीच में मैं बहुत डिप्रेशन में होने लगी और मेरा बच्चा भी बीमार हो गया था, उसको टीबी हो गई थी। और इसी बीच में परमेश्वर के वचन ने हमें छुआ और उसके बाद में हम धीरे धीरे हील हुए थे। उस समय जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा था, आपको भी कुछ समझ नहीं आ रही थी ये क्यों नहीं, हो रहा है नहीं, मेरे साथ? लोग आपको क्या बोलते थे आपकी लाइफ को कि देख के? शायद इसी में कमी होगी, वरना इसकी देवरानी तो अच्छे से बाहर रह रही है। और क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी और सब मुझसे कहते थे वो कैसे रह रही है, तुझे क्यों निकाल दिया गया, तू भी वैसे ही क्यों नहीं रहती है जैसे वो रहते हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। और मेरे ससुर ने भी कह दिया था तुझे मार के और हम अपने बेटे की दूसरी शादी कर लेंगे। और इसी वजह से आपके फादर जो है वही आपका खर्चा उठाते थे। जी जी। कितने साल आप हस्बैंड वाइफ अलग रहे? 7 साल हम हस्बैंड वाइफ अलग रहे। लेकिन आपकी सोच क्या थी, आप क्या चाहते थे? परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसे मैंने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तो परमेश्वर के वचन के ही साथ मैं चलती रही और परमेश्वर के वचनों को थामे रही। इसी बीच मैं परमेश्वर में बढ़ती भी गई। और इस दिसंबर की साइड में यहाँ के एक वॉलंटियर ने मुझसे बात करी, तो उन्होंने मुझे बताया यहाँ के बारे में। और फिर उसी बीच में नाइट प्रेयर को भी मैंने सुना था। उस नाइट प्रेयर में मैं बहुत हीली, मुझे बहुत सुकून मिला। ओके, और जब आप चर्च में आए, आपने परमेश्वर के दासी की मैरिड लाइफ के बारे में सुना था। जी, उनकी मैरिड लाइफ को देखकर आप इंस्पायर हुए थे। जी जी जी। क्या क्या देखा, क्या नोटिस कि किया आपने? परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे क्या नाम कहते हैं, मैंने पति अपने पत्नी के और पति अपने अधीन रहे, तो परमेश्वर का मैं वचन के अनुसार चलती रही। और पति अपने शरीर की मतलब शरीर के ओर प्रेम करता है, जैसे अपने शरीर से प्रेम करता है वैसे ही अपनी पत्नी से भी प्रेम करे। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। फिर मार्च में परमेश्वर के वचन को मैंने सुना अपोस्टल जी के द्वारा, और मार्च में ही मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि मैं अब आ रहा हूँ, कि हमारी फैमिली पूरी होने वाली है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मार्च से मेरे हस्बैंड मेरे साथ रह रहे हैं, मैं और मेरा बेटा सुरक्षित है। परमेश्वर का वचन कहता है तू अगर विश्वास करे तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो मैं परमेश्वर का तहे दिल से विश्वास करती हूँ कि मेरा और मेरा घराना उद्धार पा गया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इनका और इनके हस्बैंड का जो डिवोर्स केस फाइल हुआ था, 7 साल लगातार केस चला। 7 साल ये दोनों एक दूसरे से अलग रहे और बार बार कोर्ट में कचहरी में जाना पड़ता था और लाखों रुपए उस केस को खत्म करने के ऊपर लग चुके थे कि जल्दी जल्दी डिवोर्स हो जाए। लेकिन ये बहन चाहते थे कि जो परमेश्वर का वर्ड कहता है मैं उसको फुलफिल करूं। 23 मार्च 2026 को प्रेयर हुई, परमेश्वर के दास ने इस जब स्पेशल प्रेयर करी, उस प्रेयर को भी एक बार देखते हैं हम। वो डाइवोर्स कैंसल है यीशु के नाम में, वो बैड न्यूज कैंसल है यीशु के नाम में, वो शैतानी अटैक्स कैंसल है यीशु के नाम में, फेवर आपका हिस्सा है यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। ऑनलाइन तुम फ्री हो, तुम्हारी बॉडी फ्री है, तुम्हारा जीवन फ्री है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, जब आपने प्रेयर को रिसीव किया,
जब परमेश्वर के दास ने बोला कि आपके डाइवोर्स कैंसिल हैं, उसके बाद आपके हस्बैंड का खुद आपको कॉल आया उसी महीने? हाँ, उसी महीने आ गया। फिर मार्च से हम दोनों लोग प्रॉपरली एक साथ रहने लगे हैं। और उन्होंने केस वापस लिया? जी केस सारे खत्म हो गया। जी, और अभी जी। 5 महीने से आप इकट्ठे रह रहे हैं। यस, यस। मैरिड लाइफ को प्रभु ने रिस्टोर किया है। यस। थैंक्स करें, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। आप जानते हैं कि ये डिफरेंट लेवल की टेस्टमनी है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है, हस्बैंड वाइफ में बिना किसी बात को लेकर हमेशा कलेश रहता, लड़ाई झगड़ा रहता, जिसकी वजह से अलग हो गए, कहीं डाइवोर्स हो गया, अलग अलग रहना शुरू कर दिया या गलत हो गए। ऐसी चीजें शैतान हमेशा हस्बैंड वाइफ को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर आपके डाइवोर्सेस को कैंसिल करता है, क्योंकि डाइवोर्स जो है वो वर्ड के खिलाफ है। डाइवोर्स अगर शैतानी चीजों के द्वारा हो रहा है, जादू टोना आपके ऊपर हुआ है और तब आपका डाइवोर्स हो रहा है, तो वो एक शैतान है, वो एक जादू टोना है। जब आप वर्ड को सुनते हैं, प्रेयर को रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर डिलीवर करता है। आज जितने कपल्स, जितने हस्बैंड वाइफ, जितने फैमिलीज ऐसे केसेस के नीचे या ऐसे ही सेम कंडीशन के नीचे से आप होके गुजर रहे हैं, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें, फास्टिंग में रहें, प्रेयर में रहें। आप बड़ी गवाही के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह की जय हो। सब परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं, इन आशीषों के लिए, इन बड़ी गवाहियों के लिए। आप बताएं आपका नाम क्या है, कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम डिंपल वाला है ते ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। आप कितने साल से वहाँ रह रहे हैं इटली में? ਮੈਨੂੰ 12 साल हो गए। ओके, फरवरी 2012 में आपकी शादी हुई थी? हाँ जी। ठीक है, आप बताएं क्या टेस्टमनी है आपकी? ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ 2023 ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 15 ਕੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ उस समय भी मन में डर था यही चीज का? हाँ जी, डर तो बहुत ज्यादा सी कि शायद। उस समय आप मीटिंग को ऑनलाइन अटेंड करते थे वहां से? हाँ जी, हाँ जी, मैं मीटिंग नु ऑनलाइन अटेंड करती सी। ओके, कैसे परमेश्वर ने फिर आपके डर को खत्म किया, कैसे आपको आशीषित हौली हौली जिद्दां मैं प्रेयर करती सी, अपने ऑनलाइन मीटिंग देखती सी ते हौली हौली फिर मेरा डर खत्म होंदा गया। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਨੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ 3-4 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਬੀ ਗਰਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੀ कितने साल के बाद हुआ? दे दो। बेबी बॉय 12 साल बाद मेरे घर बेबी बॉय आया। 12 साल के बाद? हाँ जी। कितनी खुशी अभी? बहुत ज्यादा खुशी है। साढ़े सारे घर दे दी हार्ट डिजायर सी कि बेबी बॉय होवे ते बेबी बॉय होया। क्या सलाह देना चाहते हैं आप लोगों को? यही है कि सारे प्रार्थना करन, परमेश्वर ते विश्वास करन। परमेश्वर सब कुछ करन दी ताकत रखदा है। ਨਾਲੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਇਮਾਨੁਅਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੁਅਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਓ जीसस, तारीफ करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। पाकरू मसीह दा, पाकरू मसीह दा बसदा है साडे ते मौजां लग गईयां ने।
गईया ने ते मौजा लग गईया ने ते पीका चढ़ 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 गईया ने पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा पाकरू मसीहा दा बसदा है साडे अंदर ते मौजा लग गईया ने ते मौजा लग गईया ने लग गईया मौजा लग गईया ने। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले जैसे हैं? कि ब्रदर जी, मेरा नाम मनदीप है, मैं गुरदासपुर डेरा बाबा नानक से रही हूँ। ओके, क्या टेस्टमनी है, क्या गवाही आपकी बताएं आप? जी ब्रदर, मेरी गवाही मेरे बेबी बॉय की है। जून 2020 में आपकी शादी हुई थी? जी ब्रदर। ओके, क्या गवाही आप बताएं खुद अपने मुझसे? जी ब्रदर, 2020 में हमारी मैरिज हुई और 2021 में परमेश्वर ने मुझे बेटी के साथ ब्लेस किया और 2023 में फिर सेकंड टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई और फिर परमेश्वर ने मुझे बेटी के साथ ब्लेस किया और हम अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश थे, लेकिन हमारी हार्ट डिजायर थी कि हमें परमेश्वर बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे। और फिर मैं थर्ड टाइम 2024 में प्रेग्नेंट हुई और मुझे ना 4th मंथ में एक मतलब जादू टूना घर पे हुआ और उसके बाद मेरा मिस कैरेज हो गया। तो जब मिस कैरेज हुआ तो डॉक्टर ने बोला था कि अब आप प्रेगनेंसी मतलब कंसीव नहीं कर सकते क्योंकि बेबी 1.5 मंथ से मेरे पेट के अंदर डेड था। तो उन्होंने बोला था कि मतलब अब 2-3 साल प्रेगनेंसी नहीं करनी। तो जब हम परमेश्वर के साथ मतलब हमेशा ही वचनों को सुनते थे, प्रेयर को रिसीव करते थे और सितंबर 2025 में हमने प्रेयर को रिसीव किया और अक्टूबर 2025 में मैं प्रेग्नेंट हुई और परमेश्वर ने मुझे हेल्दी बेटे के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इन आशीषों के लिए जो खुदावंद आज लोगों को दे रहे हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें। और ये टेस्टमनीज जो हैं आपके सामने खड़ी, परमेश्वर ने शर्मिंदगियों को खत्म किया, परमेश्वर ने ब्लेस किया, हार्ट डिजायर को फुलफिल किया। आज जो लोग आप परमेश्वर की प्रेजेंस में यहाँ पे बैठे हैं, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपकी परिस्थितियों को चेंज करने की ताकत रखता है, लेकिन एक कंडीशन है इसके साथ कि आपको फेथ के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने जाना है। बाइबल में लिखा है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां डिलीवरेंस है, वहां आजादी है। आज खुदावंद के घर से आप अपनी आजादी को, अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों और अपनी गवाहियों को लेकर वापिस आएंगे। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका हालेलुया आपके पड़ोसी से ऊंचा होगा। एक बार फिर से ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची